हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। आप लगे हैं एग्ज़ाम्स की तैयारियों में। लुक एट मी चिल्ड्रन, व्हाट इज़ देयर, इट्स नथिंग। और हम भी लगे हैं आपके लिए वीडियोस को। अरे कोई है क्या? हाँ, फुटप्रिंट्स, you are looking at these footprints. Whose footprints are these? These are without feet. But where is the man? I can't see. Can you see whose footprints are these? Oh my God, what is happening in my studio? Is my studio haunted by a ghost? What is happening in my studio? Bewildered? Confused? मैं भी confused हूँ कि ये क्या हो रहा है। जी हाँ, these footprints are appearing from nowhere and getting fainter and fainter. What is this? This is the topic today. Footprints without feet. Beautiful title by H.G. Wells, who is called father of science fiction. Yes, do you know H.G. Wells, who wrote The Invisible Man? 10+2 स्टूडेंट्स का ये नॉवल है, जिसका एग्जर्प्ट आज हम स्टडी करने वाले हैं। आपकी फुटप्रिंट विदाउट फीट का लेसन 5 का जो चैप्टर है, आपका 5th चैप्टर है आपका फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो क्या क्वेश्चन उठाता है इसके अंदर कि कैन वी बिकम इनविजिबल बाय सिंपली कंज्यूमिंग एनी ड्रग, और विल इट बी वाइज? Will not be there lawlessness in society if it is going in wrong hand, this drug, this rare drug? ठीक है ना? So scientists are working कि how to be transparent like this glass of water, कि how human body can be transparent. And here in this story there is a formula cause to a lawless person. What happens you will see in the story we are going to study, which is written by H.G. Wells, and H.G. Wells' predictions for the future came true, that he is sometimes called father of futurism. This story भी साइंस फिक्शन का एक शानदार एग्जाम्पल है ये। H.G. Wells, who is best remembered for his science fiction novel, and he is called father of science fiction. Beautiful title of this lesson, Footprint Without Feet, is very much appropriate. You will see कि there are footprints visible but man is unseen. Title throughout the story arouses the curiosity of the reader, and title is appropriate, justifiable, and conveys the chief elements of the story. So let me ask you question here कि would you like to be invisible? What do you think if man gets this power to be invisible by consuming any drug or some formula like we saw in Mr. India, that Hindi movie in 1980s, that was a hit of Bollywood. तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो क्या है उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस? व्हाट डू यू थिंक? आपके हाथ को ऐसा फार्मूला लग जाए, व्हाट विल यू बी डूइंग विद दैट फार्मूला? बट वन थिंग वी शुड रिमेंबर, दैट पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी दिस लेसन टॉक्स अबाउट कैन बी डिजास्ट्रस. We agree that all invention must therefore be monitored and developed for the good of the society and not for anyone's personal benefit. Yes, any specific individual. Otherwise, damage would be immense. Here in this story, कहानी में क्या हो रहा है कि एक ग्रिफिन साइंटिस्ट है, वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है जिसने इजाद कर ली है एक ट्रांसपेरेंट होने की दवा, रेयर ड्रग। तो हमें ट्रांसपेरेंट होना चाहिए इन आवर डेली लाइफ अफेयर, इन आवर, यानी कि अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में हैं या प्राइवेट सेक्टर में भी हैं। तो ये रेयर ड्रग मैं आपके लिए लाया हूँ, मेरे हाथ लग गया है फार्मूला। तो हम देखते हैं कि क्या इसको हम अगर कंज्यूम करें और क्या हम इस पे इनविजिबल हो जाएंगे। तो लेट्स सी, लेट मी ट्राई, लेट्स बी ट्रांसपेरेंट। ओके, आई एम गोइंग टू कंज्यूम। अगर मैं आपको ना दिखूँ तो देखते हैं अभी क्या होता है। क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? हेलो, एम आई ऑडिबल एंड एम आई विजिबल? नो? ओ माई गॉड, दिस ग्रिफिन्स फार्मूला इज वंडरफुल. नाउ आई एम इनविजिबल. So this is working.
ये तो वाकई प्रूव हो गया दैट ह्यूमन बॉडी कैन बी इनविजिबल. So now problem is I don't know about the reverse process. Children, can you tell me, go to comment section, how can I become visible once again? क्या कोई और ड्रग है ऐसी अब जो इनविजिबल से विजिबल होना है? तो ये मैं वापस आ जाता हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ और ये फार्मूला देखते हैं हम. मुझे मिल गई है रिवर्स प्रोसेस भी इसकी, और मैं एक बार फिर से एक मेडिसिन जो हूँ, एक रेयर ड्रग और मिल गई है मुझे, और मैं आई एम कंज्यूमिंग दैट ड्रग और I am visible now. Oh my God, that formula. Hats off to Griffin. Hat का तो कमाल आने वाला है. चलिए स्टडी कर लेते हैं आज का लेसन. बट बिफोर गोइंग फर्दर आई वुड लाइक टू से टू सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट यू कैन गॉट नोटिफिकेशन ऑल माई वीडियोज़ एज एंड व्हेन आई रिलीज देम. ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरे फ्यूचर में आने वाले सभी वीडियोज़ के लिंक आपको अपने आप आपके फ़ोन पर मिल जाया करेंगे और आप अपडेट रह सकेंगे. चलिए क्या हो रहा है कहानी के अंदर देख लेते हैं. इससे पहले भी आप हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए www.mynewclassroom.in पर, जहां पर ये सारे रिटन मटेरियल भी आपको प्रोवाइड हैं. यूट्यूब पर हमारे वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं. आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप समरी और एक्सरसाइज पर भी दिए गए वीडियो ज़रूर देखना. आज मैं क्या लेकर आया हूँ आपके लिए, लाइन बाय लाइन फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेसन, फुटप्रिंट विदाउट फीट. You can open your books or you can look at the screen. We have made arrangement for you कि if you don't have book तब भी आपका काम चल जाए. ठीक है, तो टेक्स्ट पे आप नज़र रखिए. The two boys started in surprise at the fresh muddy. मड्डी क्या होता है? मड्डी होता है covered in mud, है ना, जो फुल ऑफ मड हमारे पैर गारे में भर जाते हैं. इम्प्रिंट्स, इम्प्रिंट क्या होता है? इम्प्रेस, स्टैम्प या एक मार्क, कोई चिन्ह, आउटलाइन ऑफ ए सरफेस, जैसे पैर के फुटप्रिंट्स हुआ करते हैं, इम्प्रिंट होता है वो भी. ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट. बेयर फीट मैंने क्या होता है? नंगे पाँव, नॉट क्लॉथ्ड या कवर्ड ना किए हों. पैर कवर करते हैं ना हम चप्पलों से, स्लीपर से या शूज़ से. What was a barefooted man doing on the steps of a house? कि नंगे पैर कि एक घर की पौड़ियों पर ये क्या हो रहा है? इन द मिडल ऑफ लंडन. एंड वेयर वॉज द मैन, और वो आदमी कहाँ है जिसके ये पैरों के निशान हैं? क्या हो रहा है कि दो लड़के निशान देखते हैं पैरों के सीढ़ियों से नीचे आते हुए, लंदन के बीचों बीच एक घर की सीढ़ियों से, और वो जानना चाहते हैं कि वो आदमी कहाँ है. एज दे गेज्ड a remarkable sight met their eyes. A fresh footmark appeared from nowhere. कि अचानक फिर से जब ये सब वो देख रहे थे, गेज करना कि looked at steadily, टकाटक, एंड इंस्टेंटली, स्पेशली इन एडमिरेशन, सरप्राइज में, हैरानी में, है ना, या सोच में. और रिमार्केबल जो साइट थी वो कि वर्दी ऑफ अटेंशन, कि उनका ध्यान आकर्षित हो गया कि अरे फुटप्रिंट्स के निशान और विदाउट फीट, ये क्या हो रहा है. तो फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर द अनदर, डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट. प्रोग्रेसिंग यानी मूविंग फॉरवर्ड. द बॉयज फॉलोड फैसिनेटेड. उन लड़कों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया कि ये किसके भाई पैरों के निशान हैं, चलो पीछे पीछे चलते हैं. फैसिनेटेड देवर, कि स्ट्रांगली अफेक्टेड, अट्रैक्टेड, इंटरेस्टेड थे वो उसमें. अनटिल द मड्डी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर एंड फेंटर एंड लास्टली डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर. फेंट मैंने बेयरली परसेप्टिबल, अब दिखाई नहीं दे रहे थे, मध्यम और मध्यम और मध्यम, और अंत में गायब हो रहे थे. द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ. द bewildered boys कि परप्लेक्स जो थे, कन्फ्यूज्ड बॉयज जो थे, हैड बीन फॉलोइंग ए साइंटिस्ट हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट. जिसने, कौन था वो? कि एक साइंटिस्ट था वो जिसने अभी अभी ईजाद किया था फार्मूला कि मानव शरीर को पारदर्शी कैसे बनाया जाए. तो वो कौन था? ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट. देखिए, हो सकता है उसने कैट पर किया हो पहले, टू प्रूव दैट ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, कि बन सकती है. फाइनली ही swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass.
ठीक है, दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास। तो उसने एक ड्रग ईजाद कर ली जिसको पी कर, ये देख सकते हो, लेट्स बी ट्रांसपेरेंट, रेयर ड्रग। तो ये मैंने आपको पी के दिखाई थी ना शुरू में, तो ये वो है, लेकिन जो था वो ट्रांसपेरेंट बन जाता था एज ए ग्लास, लेकिन वो सॉलिड होता था, दैट कुड बी फेल्ट। तो ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रादर ए लॉलेस पर्सन, वो जो है कानून की परवाह नहीं करता था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, इस कारण उसके जो मकान मालिक थे उसे पसंद नहीं करते थे। एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, इजेक्ट करना होता है कि किसी को फोर्सफुली कहना भी जाए यहाँ से, इजेक्ट करना, कंपेल करना किसी को, ठीक है। तो इन रिवेंज, रिवेंज मैंने बदले में, ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, उसने उसके घर को आग लगा दी। देखो कि ब्रिलियंट साइंटिस्ट, लेकिन काम कैसे, लॉलेसनेस पर्सन, टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, नाउ ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, उसको उतारने पड़े, इनविजिबल होना था, वो ड्रग ली उसने, गायब होना था, लेकिन कपड़ों में नहीं हो सकता था। दस इट वॉज दैट he became a homeless wanderer without clothes, without money and quite invisible, गायब था, बेघर था, बेपैसा था, until he happened to step in some mud, और अचानक गारे में उसके पैर चले गए, and left imprints as he walked। और ये जो थी कहानी फ्लैशबैक में गई थी थोड़ी देर के लिए, तो ये हो रहा था जो उन दो बच्चों की नज़र उस पर पड़ी, लेकिन he escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London। अब उन बच्चों से छुटकारा पा लिया जो उसका पीछा कर रहे थे, बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर, अभी ख़त्म नहीं हुए थे उसके करामातें। ही हैड चोजन ए बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वॉन्डर अबाउट लंडन विदाउट क्लॉथ्स, वांडर मैंने टू वॉक और मूव इन ए लेयरली और एमलेस वे, जो घूमने का उसका समय सही नहीं था। द एयर वॉज, बिकॉज द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, resentful way, hurtless, and he could not do without clothes। लंदन इतनी ठंड पड़ती है कि पानी भी जम जाता है, उसमें वो जा रहा है बिना कपड़ों के, है ना, wandering in the streets of London in the chill of January air। Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth। उसको मिल गया एक लंदन स्टोर कि यहाँ घुस जाऊँगा अभी मैं, और कुछ गर्म कपड़े मुझे मिल जाएं। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, बंद होने का समय आ गया स्टोर के। एंड एज सुन एज द डोर्स वाज शट, ग्रिफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेयर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। खर्चे की तो चिंता थी नहीं, बिल तो भरना ही नहीं था। एक्सपेंस मैंने द कॉस्ट इनकर्ड इन और रिक्वायर्ड फॉर समथिंग, अब उसकी तो चिंता ही नहीं थी उसे। ही ब्रॉक ओपन बॉक्सेस, वहाँ पर उसने क्या क्या किया, स्टोर के अंदर 6-7 अलग अलग तरह के सुपर हाउस होते हैं ना आजकल के, सब कुछ मिलता है वहाँ, खाने पीने का एक होता है, कपड़ों का एक होता है, ठीक है। तो सारा रैपर खोले उसने, एंड फिटेड हिमसेल्फ विद वार्म क्लॉथ्स, शून जो था, ही वॉज विद शूज एंड ओवरकोट एंड ए वाइड ब्रिम्ड हैट। ही बिकेम अ फुल्ली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन बन गया वो, ठीक है। अब वो दृश्य हो गया, अदृश्य था ना पहले, अब वो दिखने लगा। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर एंड फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स, ठीक है, गद्दों पर वो सो गया। If only Griffin had managed to wake up in the good time, all might have been well। अगर वो सुबह जल्दी उठ जाता तो सब ठीक रहता। As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning। कि सुबह, अगली सुबह जो है असिस्टेंट आ गए। Then he saw a couple of them approaching, तो उसने देखा कि मेरी ओर आ रहे हैं, और वो घबरा गया। He panicked, पैनिक करना मैंने फील और cause to feel panic, and began to run। They naturally gave chase, पीछे तो उन्हें जाना ही था, चेज करना, पीछा करना। And in the end he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes। So once more he found himself invisible। एक बार फिर से वो अदृश्य हो गया, लेकिन साथ के साथ क्या हो गया, नेक्ड, नंगा भी तो हो गया। इन द चिल जनवरी एयर, फिर से दिस टाइम नाउ ही डिसाइडेड टू ट्राई
the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders, कि ऊपर का सिरा भी मैं छुपाऊँ, मुझे नकली नोज़ मिल जाए, मुझे विस्कर्स मिल जाए, मुझे मस्तास मिल जाए, मुझे डार्क ग्लासेस मिल जाएं। तो उसने सोचा कि यहाँ जाता हूँ, यहाँ मिल जाएंगे। थिएट्रिकल कंपनी ड्ररी लेन में वो चला गया। शिवरिंग with cold he hurried to Drury Lane, the center of the theatre world in London. He soon found a suitable shop there and he made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers, ना? तो ये सब उसने लिया, नकली सब लगाया साथ के साथ उसने लगाया ए लार्ज हैट। तो अब वो बन गया पहले जैसा विजिबल। तो टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही carelessly attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find. वो सारे पैसे उसके दराज में से जो उसने ले लिए। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Epping, where he booked 2 rooms at the local inn, जहाँ पर उसने एक स्थानीय सराय में 2 कमरे बुक किए। इन क्या होता है? ए पब, टिपिकली वन इन एनी कंट्री को पब इन कह देते हैं। पब इन सम केसेस प्रोवाइडिंग जो है अकोमोडेशन को, है ना, गेस्ट हाउस कह लो। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। यही अपने आप में अजीब था कि ये सर्दियों में ये बंदा यहाँ पर आया है इपिंग में, सराय में कमरा लेने। आ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, और ये बैंडेजेस, नकली नाक और ये सब क्या लगाया हुआ है इसने, है ना। तो इट कैप्ट वहाँ के लोग थे देयर टंग्स वैगिंग, इधर उधर की बातें उसके बारे में वो करने लगे। मिसिज हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक and told her, my reason for coming to Epping is a desire for solitude. Solitude क्या होता है? The state or situation of being alone. I want to be in peace, tranquility. I don't wish to be disturbed in my work. Besides, an accident has affected my face. इसके अलावा उसने ये भी बताया कि एक दुर्घटना मेरे साथ हुई थी कि मेरा चेहरा ऐसा है। समय पर ना आना और उसका चेहरा होना जो लोगों को वैगिंग कर रहा था, इधर उधर की बातें कर रहे थे उसके बारे में। तो सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट, अनकन्वेंशनल था वो, स्लाइटली स्ट्रेंज था। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, मिसिज हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर। उसको इरिटेबल टेम्पर और स्ट्रेंज हैबिट से मतलब नहीं था, क्योंकि उसने एडवांस में किराया दे दिया था। बट अब क्या था? स्टोलन मनी कितना देर चलती? डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट। झूठ बोला उसने एक बार फिर से कि उसका चेक आने वाला है, जल्दी ही वो किराया दे देगा, बैठ जा। Shortly afterwards, a curious episode occurred. Curious मैंने एक बार फिर से strange, कि जहाँ ग्रिफिन वहीं strange things तो happen होंगी, unusual things होंगी। कि very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in their study. Creeping downstairs, चुपचाप जाना, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. कि उसके दराज से पैसे चुराए जा रहे थे। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद ए पोकर, एक मेटल रोड को हम पोकर कहते हैं, ग्रास्प्ड, तो उसने पकड़ी हुई थी मजबूती से, फर्मली इन हिज हैंड, द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर, और क्या बोला? सरेंडर। देन टू हिज अम्यूजमेंट, हाथ उसमें ओपन कर दो, लेकिन वो हैरान हुआ। ही रियलाइज दैट द रूम appeared to be empty. He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney, but there was not a sign of anybody. Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. गुजारे के
है ना, खर्चे के पैसे जो गायब थे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, अजीब घटना है ये तो भैया। द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, यही कहता रहा वो सारा दिन। बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसिज हॉल फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। उसी सुबह थोड़ी देर बाद मिसिज हॉल के फर्नीचर के साथ जो हुआ वो इससे भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, अजीब था। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, कि उसके जो वैज्ञानिक रहने आया है उसका दरवाज़ा खुला है। यूजली इट वॉज शट एंड लॉक्ड एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, अगर कोई भी उसके कमरे में घुस नहीं करे। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, वो खोना नहीं चाहते थे इसे। दे पीप्ड मैंने लुक क्विकली, है ना, एंड फर्टिवली एट समथिंग स्पेशली थ्रू ए नैरो ओपनिंग, थोड़ी सी जगह पे झांक के देखा उसने। राउंड द डोर सा नो बॉडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, कि देखो सही क्या मामला है, कहाँ चला गया आज ये जो बंद रहता था, आज कैसे खुला है। उन्होंने देखा अंदर जाके कि द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, शोविंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, ये तो कुछ समय से ही गया हुआ है, काफ़ी समय से। एंड स्ट्रेंजर स्टिल the clothes and bandages that he always wore were lying about the room, और वो जो पट्टियाँ और जो कपड़े वो डाल के रखता था वो वहीं पड़े हुई हैं फर्श पे बेड के साथ ही, क्योंकि वो गायब होया हुआ था। ऑल ऑफ ए सडन उसके साथ ही खड़ा था वो, तो मिसिज हॉल ने सुनी, हर्ड आ स्निफ, सांसों की आवाज़ नाक से आती हुई, तो क्लोज टू हर ईयर। A moment later, the hat on the bedpost leaped up, उड़ के, and dashed itself into her face, उसके चेहरे पे आ बजा। Then the bedroom chair became alive, और तब जो बेडरूम की चेयर थी वो अलाइव हो गई, जिंदा हो गई, मतलब वो चलने लगी, क्योंकि वो खींच रहा होगा उसको या पुश कर रहा होगा। Springing into the air, it charged straight at her legs, उसकी टांगों पे आके गिरी foremost. As she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam. Slam मैंने जोर से दरवाजे को बंद करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, slam कहते हैं। and lock the door after them, और फिर जोर से उस चेयर ने ही दरवाज़ा जोर से धड़ाम से दे मारा। मिसिज हॉल ऑलमोस्ट fell down the stairs in hysterics, तो exaggerated reaction में, hysterics में जो है वो बेहोश होके वहीं सीढ़ियों पे गिर गई। She was convinced that the room was haunted by spirits, कि इस कमरे में जरूर कोई भूत प्रेत घुस गए हैं। and that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture, और उसके फर्नीचर में स्ट्रेंजर ने कुछ जो है ये उल्टा सीधा किया है, कि वो घूमता फिर रहा है, चल रहा है, टॉप उड़ रहे हैं, कुर्सियाँ चल रही हैं। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, और मेरी माँ जो है जब जीवित थी तो इस कुर्सी पर बैठा करती थी। शी मॉन्ड, तो जो फिज़िकल और मेंटल सफरिंग में जो हम बोलते हैं उसको मॉन्ड कहते हैं। एंड टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और देखो कि ये अब मेरे अगेंस्ट ही हो गए हैं। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वाज कॉज्ड बाई विच क्राफ्ट। विच क्राफ्ट मैंने कि कोई जादुई शक्तियाँ हैं, कोई काला जादू कर रहा है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। बट विच क्राफ्ट और नॉट, व्हेन न्यूज़ ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्जीमैन्स home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it, कि ज़रूर इस अजनबी का जो व्यवहार है ना ये अजीब है और इसी का जो हाथ इसके अंदर हो सकता है। और ये शक और मजबूत हुआ, suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money। और उसने वो जब कैश जमा कराया और अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि उसके पास पैसे नहीं हैं, और फिर ये चोरी की घटना हुई, उसके बाद उसने वो पैसे जमा कराए, तो लोगों का शक और मजबूत हो गया। इस शक के बिना पर द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, गुपचुप तरीके से
उसमें गांव के सिपाही को बुलाया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मिसिज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। अब उसने वही बैंडेज और कपड़े डाल लिए होंगे तो वो उससे बाहर आ रहा है। जब वो गए तो वहाँ था नहीं, तो वो बोली उससे, आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स। बता क्या कर रहा था ऊपर, मेरी कुर्सी के साथ क्या किया तूने। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इज इट यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, कि हम जो गए कमरा खाली था, तू कैसे उसमें से बाहर आया। एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम, और तू ताले लगे कमरे में गया कैसे। दिस साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, साइंटिस्ट तो पहले ही जो था गुस्से वाला था। एंड नाउ ही बिकेम फ्यूरियस। यू डोंट अंडरस्टैंड हु एंड वट आई एम, ही शाउटेड। तू नहीं जानती मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। वेरी वेल, अभी बताता हूँ, आई विल शो यू। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, whiskers, spectacles and even nose. It took him only a minute to do this. और 1 मिनट के अंदर उसने सारा अपना कुछ उतार दिया। The horrified people there in the bar found themselves staring at a headless man. अरे बाप रे, ये क्या। अब सब उसे देख रहे हैं, हेडलेस मैन को। Mr. Jeffers, the constable, now arrived, जो आ चुका था, and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. वो हैरान था कि उसे गिरफ्तार करना है एक ऐसे आदमी को जिसका सिर नहीं है। बट जेफर्स वाज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। इफ अ मैजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन अरेस्ट, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हेड। तब उसको गिरफ्तार करने जाना ही जरूरी था, चाहे उसका सिर है चाहे नहीं है। ये मिस्टर जेफर्स मानते थे। तो देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन। इस पर क्वेश्चन आता है कि कांस्टेबल के साथ ग्रिफिन ने क्या किया। तो ये सीन देखिए। एज द पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ ए मैन हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर, फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, कुछ ऐसा। And the constable found himself struggling with someone he could not see at all. Some people tried to help him but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere. उन्हें घुसे पे घुसे पड़े जा रहे थे और उन्हें ये भी नहीं पता लग रहा था कि आ कहाँ से रहे हैं, और वो किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। What happened in the end? Jeffers was knocked unconscious. इस तरह से झगड़े में कोलाइडेड चल रहा है, हार्ड ब्लो लग रही हैं उसे, ठीक है। तो वो अनकॉन्शियस हो गया। एज ही मेड ए लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज थी चारों तरफ, होल्ड हिम। बट दिस वॉज ईजियर दैन डन, बट दिस वॉज ईजियर सेड दैन डन। लेकिन ये कहना आसान था, करना मुश्किल। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। H.G. Wells, द फादर ऑफ साई-फाई, साइंस फिक्शन। यस, ठीक है, कैसा लगा। तो ये थी एक्सरसाइज, समरी एंड लाइन बाय लाइन फुल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जल्दी हम आने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर भी इस लेसन के। बने रहिए हमारे साथ। अगर कोई डाउट है तो ज़रूर लिखें, हमें बताएं कि हम किस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाएं, हम ज़रूर बनाएंगे। कमेंट में लिखें वीडियो आपको कैसा लगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आप मेरा कोई कमेंट ऐसा नहीं देख सकते जिस पर मैं रिप्लाई ना करता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से अपना प्यार बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी कहें, और जाइए हमारी वेबसाइट www.mynewclassroom.in पर भी, जहां पर आप रिटन मटेरियल से स्टडी करना चाहते हैं तो वहां पर भी स्टडी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।